Morning students. So how are you in ninth class? Hopefully you all would be fine and good at your home. So today we are going to start our revision work. The syllabus up to now is being taught you during April and May. So first I am taking today's the poem The Road Not Taken, that is first form of your would be hive, and it is written by Robert Frost, well-known poet Robert Frost. Have you heard the name of Robert Frost? He is well-known poet as a romantic poet. He is an optimistic poet. And here also I written some difficult words. You can go through. And today I am going to now start. This poem is about making choices in life. You know, in our coming life you have to make different decisions. You would have some options, either this way or this way. So you have to choose what to do, either go through this way or through this way. You choose this or this. Suppose in your 11th class you have 3 streams, and from these 3 streams you have to take one. You have to opt only one. So it is depend on your homework that what options you should. So in this way the poet is saying that our choices shapes our life. What decision we took today, definitely it will make beneficial or it may be harmful for our coming life. That's why we should take a decision very carefully. The message that is the poet wants to deliver through this poem. And he is delivering this message through that he was sometime wandering from a forest, and going through this forest he reached a diversion. So I start the text. 2 roads diverged in a yellow wood. Yellow wood means yellow wood jungle, forest. And yellow means जिस फॉरेस्ट में जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की वो सूखी हुई होंगी, है ना। तो जब वो पत्तियां सूखी हुई होंगी तो वो जंगल कैसा दिखाई देगा? येलो, है ना। आप जानते हैं ना कि ऑटम सीजन में क्या होती हैं, सारी जो लीव्स होती हैं वो ट्रीज की वो येलो हो जाती है. दे टर्न येलो ड्यू टू द सीजन ऑफ ऑटम. No new leaves are coming on the tree, so that time is we call autumn season. So maybe this time may be the autumn season, and that's why all the leaves of the forest trees turn yellow. That's why he is calling here yellow wood. And in next line, and sorry I could not travel both. वहाँ पर जब मैं पहुँचता हूँ द रोड डाइवर्स का मतलब होता है जहाँ से वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं डाइवर्जन. आपकी सड़क पे चलते चलते चौराहे पे या कहीं रास्ते में आता है कि वहाँ से रोड डाइवर्स हो रही है, मुड़ रही है, तो उसको बोलेंगे हम कि वहाँ से रोड डाइवर्स हो रही है. तो वो कह रहा है कि आप ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं कि आप इस रास्ते से भी चले जाएं और इस रास्ते से भी चले जाएं. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप दोनों ही रोड से चले जाएं. क्या ये हो सकता है? नो. आइदर यू विल चूज दिस रोड, तो दोनों में से एक ही रोड तो चुनेंगे आप. तो इस तरह से वो कह रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. क्योंकि मैं एक तो हूँ यात्री, चलने वाला एक ही यात्री हूँ जिसने जाना है इस पर, तो इसलिए कह रहा है कि और कोई वहाँ पर है नहीं. तो आई स्टूड एंड लुक्ड, अब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ. मीन्स ही वाज थिंकिंग, सोच रहा था क्या कि मैं इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ, बिकॉज इन दोनों रास्तों से वो पहले कभी नहीं गया है. तो दैट्स व्हाई ही वाज थिंकिंग एंड ही फीलिंग सैड कि मैं दोनों रास्तों से नहीं जा सकता. दैट्स व्हाई ही सेइंग एंड one traveler long I stood and looked down and as far as I could, जैसा कि मैं कर सकता था, to where a bend in the undergrowth. मैंने देखा कि वहाँ पर क्या था कि जो सड़क जा रही है एक, वो दूर जाके जंगल में गुम हो गई है. उसने कहा ना कि अंडरग्रोथ का मतलब जहाँ से वो उसके अंदर चली गई. आप देखते होंगे कोई रास्ता यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ी दूर जाने पर वो छोटा दिखाई देगा, थोड़ा दूर. ऐसा तो नहीं है कि वो कहाँ तक जा रहा है कि आप यहाँ से खड़े होकर देख सकें. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई ही सेज कि मेरे को वहाँ से जो है वो रास्ता बहुत दूर तक जाके जंगल में ऐसा दिखाई दे रहा है वो खत्म हो गया है, गुम हो गया है, इट लॉस्ट.
अब इसलिए वो वहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है कि मैं कौन से रास्ते से जाऊँ। अब वो दूसरे की बात करता है, देन टुक द अदर, अब मैंने दूसरा रास्ता देखा, वो क्या है, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वहाँ पर कह रहा है कि कौन से wanted wear. wanted wear का मीनिंग क्या होता है, wanted wear में had not been used more. जिस रास्ते को हमने ज़्यादा यूज ना किया हो, जिसमें ज़्यादा लोग ना चले हों, इट इज़ नॉट वॉक बाय मैनी पीपल्स, तो उस पर क्या होता है कि वो जो रास्ता है वो वहाँ पर आपको पैरों के निशान नहीं बनते। आपने देखा होगा कि जो जंगल में कहीं खेत में आसपास जा रहे हो तो कहीं पर वो पगडंडी बन जाती है। वो पगडंडी का मतलब क्या है कि पैरों के चलने से वो वहाँ की घास जो है बार बार खत्म होती रहती है, और जहाँ पर हम नहीं चलते हैं बार बार तो वहाँ पर घास ग्रीनरी आ जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक जो रास्ता था वो क्या था, वॉज नॉट लुकिंग बेटर, हैविंग परहैप्स बेटर। क्यों कह रहा है उसको, पर शायद अच्छा है कि वो साफ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई चला हुआ नहीं है, इसलिए वो ग्रीनरी दिखाई दे रहा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रास उसी पर तो दिखाई दे रही है जिस पर लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं रहा हो, तो इसलिए वहाँ पर ग्रास दिखाई दे रही है। जिस रास्ते पर अधिकतर लोग चलते रहते हैं तो वहाँ पर वो घास नहीं जम पाती है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एंड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर से मैंने आपको बताया हैड नॉट बीन वॉक हो, जिस पर अधिकतर लोग ना चले हों, तो इसलिए उस पर पैरों से वो घास नहीं मिटी होती है। ठीक, तो इस तरह से वो कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वो जो है ज़्यादातर प्रयोग में नहीं लाई गई थी, इसलिए वो रास्ते पर चलने के निशान नहीं बचे हुए हैं, और इसलिए ऐसा लग रहा था कि दैट रोड वॉज नॉट यूज्ड बाय मैनी पीपल। तो दो इन टू पैराग्राफ्स द पोएट इज डिफरेंशिएटिंग वन पाथ टू अनदर, कि एक रास्ता कैसा है और दूसरा रास्ता कैसा है। How is one path and how is another, and the main thing is this, that at that moment the poet has to opt either this path or this path. So same like we have to face in life many times that either go to this way, either go or to this way. हम ये काम करें या वो काम करें, हम यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, मैं ये वाली स्ट्रीम चुनूँ या ये वाली, मैं कॉमर्स लूँ या मैं ह्यूमैनिटी लूँ या मैं साइंस लूँ। Okay, thank you, have a nice day.